Hi there, this is Ubaidullah, and here I am with the second video of the chapter number 5, The 100 Dresses Part 1. What did we study in video 1 of the same chapter? Let's recap. Wenda is not coming to school. Third day, two of her classmates notice her absence. Wenda is not friends with anyone. She is seldom seen talking or smiling. The place where she sits is not very clean. The students she sits with are not very serious, but she is in no way similar to them. The students who noticed her absence were Peggy and Maddie. These were the same girls who started making fun of Wenda. Peggy was popular, pretty girl, and Maddie was her closest friend. But why did they made fun of Wenda and how it all started? Let's find out. So this was the first thing. Wenda Petnowski, most of the children in room 13 did not have names like that. They had names easy to say like Thomas, Smith or Alan. There was one boy named Bounce, Willie Bounce. And people thought that was funny but not funny in the same way that Petnowski was. So what this paragraph says? It says that Wenda Petnowski, even her name was funny. So the first thing was her name. When you hear someone's name, even that personality is not in front of you, you hear the name and you say that whether the name is funny or good, easy to say. So that name, Wenda Petnowski, was actually funny because students did not have names like that in that locality. When you don't find people similar to you or similar to everyone around you, you think that they are different, or you start making fun of them like that. So here this paragraph says कि most of the children in the room 13 did not have names like that, कि क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट्स का इस तरह से नाम नहीं था जिस तरह से वेंडा का था. उनके नाम आसान थे लेने के लिए. आसान इसलिए लग रहे हैं क्योंकि they are used to calling such names like Thomas, Smith, Allen. Okay. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny. एक लड़का था जिसका नाम था Willie Bounce और उसका नाम भी लोगों को फनी लगता था. But not funny in the same way that Pat Nosky was. लेकिन वो भी उतना फनी नहीं लगता था जितना कि पैट नॉस्की लगता था सुनने में. तो इसलिए वेंडा का जो नाम था वो उसकी मजाक का रीज़न बना. Previously it was told that Wenda had some people around her. Okay, students in the group of two or more used to wait for her outside school hours, sometimes in the morning, sometimes when going back to home, okay, sometimes when coming back to school in the afternoon. But this sentence says something different. It starts with Wenda did not have any friends. So Wenda के friends नहीं थे. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. It was clean, but it looked as though it had never been ironed properly. She didn't have any friends, but a lot of girls talked to her. Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. So this paragraph is saying that not only her name but also the way she looked was different for other people. So other students were not looking the same way. Was not you know they were not the same as Wenda looked. So it also became another reason for her to be teased. सो वेंडा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, भले ही कुछ लोग उससे मिलते हों आकर, है ना, उसके रास्ते में मिल जाते हों, उससे बात करते हों, बट शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड. She
came to school alone. वो अकेले स्कूल आती थी, अकेले घर जाती थी. She always wore a faded blue dress. वो एक ड्रेस पहनती थी ब्लू कलर का. फेडेड मीन्स उसका जो कलर ब्लू था वो बहुत फेड हो चुका था, बहुत धीमा पड़ गया था. दैट डिडंट हैंग राइट. वो उसको ऊपर सूट नहीं करता था. वो उसको पहनती थी तो ऐसा लगता था कि वो उसके अंदर अजीब सी लग रही है. इट वॉज क्लीन, साफ रहता था, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली. पर उसको देख के ऐसा लगता था कि शायद इसको कभी प्रेस नहीं किया गया है, आयरन इसके ऊपर इस्त्री नहीं की गई है. शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. कोई उसका फ्रेंड तो नहीं था, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर. लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी. समटाइम्स दे सराउंडेड हर. कभी ऐसा भी होता था कि वो स्कूल में उसको घेर लेती थी. सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड. स्कूल यार्ड में उसको घेर लेती थी. और उस वक्त वेंडा क्या कर रही होती थी? वेंडा छोटी बच्चियों को हॉप स्कॉच खेलते हुए देखा करती थी कि वो एक स्कूल के ग्राउंड पर हॉप स्कॉच खेल रहे हैं. तो जब वो ऐसा खड़े होकर देख रही होती थी, इसका मतलब क्या था? शी इज लुकिंग फॉर फ्रेंड्स. शी wants to play with someone. Okay, so she is not looking at the younger at the girls who are of her age, because they may make fun of her. So that is why she is watching the little girls play. What is hopscotch? Hopscotch is a game in which you jump from one square to another square. ये स्कूल में आपको इस तरह से मिल जाएगा जिसमें बच्चों को नंबर्स भी सिखाए जाते हैं इस तरह से. 1 2 3. पहले आप एक स्क्वायर में जंप करते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इस तरह से. ये दिस गेम इज कॉल्ड हॉप स्कॉच. तो वो ये खड़े होकर देखती थी जब. तो कभी कभी ऐसा होता था कि उसकी क्लासमेट्स या दूसरी गर्ल्स उसको आके घेर लेती थी और फिर उससे बात करती थी. तो जब स्टूडेंट्स वेंडा को आकर घेर लेते थे तो क्या कहते थे उससे? वो कहते थे वेंडा. और कौन शुरू करता था? पैगी. मोस्ट पोलाइट, मोस्ट कर्टियस मैनर जो हो सकता है इंसान के बात करने का, उसमें अदाकारी करते हुए वेंडा, जैसे कि एक टीचर से बात हो रही है. यहाँ पे मिस मैसन का नाम आया है. मिस मैसन इज द टीचर, टीचर ऑफ दिस क्लास, क्लास 13. Wenda, Peggy would say in a most courteous manner, as though she were talking to Miss Mason. वो ऐसे बात करती थी वेंडा से जैसे वो मिस मैसन से बात कर रही हो. और वो क्या कहती थी? वेंडा, she would say, giving one of her friends a nudge, tell us, how many dresses did you say you had hanging in your closet? तुम्हारे तुम्हारे जो ड्रेस की जो अलमारी है उसके अंदर कितने ड्रेसेस टंगे हुए हैं? तुमने क्या कहा था मुझसे? सबको बताओ तो ज़रा यहाँ पर. तो वो अपने एक फ्रेंड को कंधे से पुश करते हुए, अपने फ्रेंड को हिलाते हुए कहती थी, क्योंकि वो टीज कर रहे हैं, वो एक तरह से परेशान कर रहे हैं वेंडा को. तो वो मजाक उड़ा रहे हैं और मजाक उड़ाने में बहुत ही पोलाइट मैनर में उससे बात कर रहे हैं. और क्या कह रहे हैं कि तुमने क्या कहा था, कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास? कर्टियस का मतलब पोलाइट, और नज का मतलब किसी को कंधे से पुश करना, थोड़ा सा पुश करना कि उसका अटेंशन हासिल किया जाए. इसके अंदर दो जगहों पर मैंने कंटेंट को डिफरेंट वेज में हाईलाइट किया है. जहाँ पे लिखा हुआ है शी वर टॉकिंग, आपको मालूम होगा कि शी के साथ वर नहीं बल्कि वॉज यूज होना चाहिए. तो यहाँ पे वर क्यों यूज हुआ है? बिकॉज दिस इज एन अनरियल सिचुएशन. शी वॉज टॉकिंग टू वेंडा, पैगी वॉज टॉकिंग टू वेंडा, बट शी वॉज गिविंग हर रिस्पेक्ट एज इफ she were talking to Miss Mason. So this is unreal situation. That is why it has been done here. When it is you will study this in the conditional sentences. When you study the second conditional sentence, you will see how unreal situation, in unreal situation we use were with she, with it, with I. If I were the king, अगर मैं बादशाह होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं क्या करता. तो जो अनरियल सिचुएशन है, जो नहीं हो सकती, जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो हम इस तरह से वॉस की जगह वर यूज करते हैं. आगे मैंने हाईलाइट किया है टेक्स्ट, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट. एंड
दैट इज वेयर वी हैव टू क्वेश्चंस टुगेदर। जब हमारे पास दो क्वेश्चंस एक साथ होते हैं तो हम उसको कैसे कहते हैं, वो इसके अंदर आपको सिखाया गया है। जैसे कि इसको ट्रांसलेट करें तो बनेगा, क्या कहा था तुमने, कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे क्लोजेट में टंगे हुए। तो हम कह सकते हैं, क्या कहा था तुमने, कब आओगे तुम, है ना। क्या कहा था तुमने, क्या कर रहे थे तुम उस वक्त। जब हम इस तरह के दो क्वेश्चंस एक साथ करते हैं तो हम उनको इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। ये एक वे है बात करने का, अच्छा इसको सीख लेना चाहिए। So when Wenda was asked how many dresses did you say you had hanging in your closet, what would Wenda say? Wenda would say 100. कितना ड्रेसेस हैं उसके पास, उसने कहा 100 ड्रेसेस है मेरे पास। 100, exclaim all the little girls incredulously, मतलब इन disbelief। सारी जो गर्ल्स थी आसपास वो एक तरह से चिल्ला के कहती हैं, कितने, 100 ड्रेसेस। And the little ones would stop playing hopscotch and listen। तो वो बच्चियां जिनको खड़े होकर वेंडा देख रही थी खेलते हुए, वो भी अपना खेल छोड़ देती हैं कि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं। यह 100 ड्रेसेस all lined up said वेंडा। वेंडा कहती है, रिपीट करती है कि यस मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सबको मैंने लाइन से लगा रखा है। Then her thin lips drew together in silence। और फिर ये कहने के बाद वो अपने होठों को मिला लेती थी, भींच लेती थी और खामोश हो जाती थी। What are they like? All silk I bet, said Peggy। Peggy कहती थी, मैं शर्त लगा सकती हूँ सब सिल्क होंगे, है ना। Yeah, all silk, all color, सब सिल्क के हैं और सब कलर, सब तरह के कलर हैं मेरे पास। Velvet too? Yeah, velvet too, मेरे पास velvet के भी ड्रेसेस हैं। Velvet is a kind of fabric, एक तरह का कपड़ा होता है। 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट स्टॉलिडली। वो विदाउट इमोशंस अपनी बात को रिपीट करती, यस मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। कैसे हैं, सब तरह के हैं, सब कलर्स के हैं, हर तरह का फैब्रिक है उसका, मतलब कोई सिल्क है ना, कोई वेलवेट है। तो मेरे पास तरह तरह के कपड़े हैं। लेकिन गर्ल्स देख रही हैं कि ये जो कपड़ा अभी पहने हुए है ये तो इतना फेड हो चुका है, इतना ज़्यादा इसका कलर उतर चुका है। तो अगर इसके पास 100 ड्रेसेस होते और इतनी तरह के होते तो क्यों नहीं ये ड्रेसेस बदल के आती, क्यों नहीं कभी ये दूसरा कपड़ा पहन कर आती। वो लोग देख रहे हैं और जो उनकी हैरानी है या जो पोलाइटनेस है, ये सब उसको असल में उसका मजाक उड़ाने के लिए है। Then they would let her go, and then before she would go, before she would gone very far, they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. 100 dresses. Obviously, the only dress Venda had was the blue one she wore every day. तो जब वो कहती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सबको मैंने लाइन से लगा रखा है, एंड आई हैव द ड्रेसेस ऑफ सिल्क एंड ऑल काइंड ऑफ फैब्रिक and all kind of colors. So they hear that, they let her go, and then they keep they are trying to stop their laughter. As soon as she leaves, they couldn't help but they laugh, and they laugh out loud. Shriek means उनकी चीखें, उनकी जोरदार आवाज़ें जो हैं, उनके हंसी के जो फुहारे हैं वो फूट पड़ते हैं। वो बहुत तेज आवाज़ में जो हंसी उन्होंने रोकी हुई थी वो निकल पड़ती है उनकी। 100 ड्रेसेस, वो उसकी बात को रिपीट कर रहे हैं। 100 ड्रेसेस तो नहीं हो सकते उसके पास। ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। हर रोज जो ब्लू ड्रेस वो पहनती थी, जो कि फेड हो चुका था इसका कलर, और जिसको देख के लगता था कि ज़माने से इसके ऊपर प्रेस नहीं की गई है, यही एक अकेला ड्रेस था उसके पास। फिर वो लोग सोचते हैं, वाई डिड शी से शी हैड 100 ड्रेस, क्यों उसने कहा कि उसके पास 100 ड्रेस हैं। व्हाट है स्टोरी, क्या स्टोरी हो सकती है ना, क्या कहानी हो सकती है इसके पीछे, उसने कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। फिर कभी जब उनका उससे मिलना हुआ तो वो पूछते, हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, 60 पेयर्स। और वो जवाब देती, 60 पेयर्स है मेरे पास, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सबको मैंने अपनी अलमारी में लगा रखा है।
cries of exaggerated politeness greeted this. और जब वो ये कहती कि मेरे पास 60 पेयर्स हैं, तो सब बहुत ही ज़ोर से उसको जो जो भी कहते वो बहुत ज़ोर से कहते, एक साथ कहते, पर पोलाइटनेस होती उसके अंदर, जो एक एग्जेजरेटेड मतलब जो एक फेक पोलाइटनेस है, जो बढ़ा चढ़ा कर जिसको बताया जा रहा है। और वो पूछते ऑल अलाइक, सब एक तरह के हैं? ओ नो, वेंडा कहती नहीं नहीं, एवरी पेयर इज डिफरेंट, मेरे पास हर तरह के पेयर हैं, हर तरह के शूज़ हैं, सब डिफरेंट हैं, हर कलर के हैं, ऑल लाइंड अप, और मैंने सबको लाइन से लगा रखा है। Peggy, who had thought of this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. This says कि मॉर्निंग में स्कूल जाते हुए लोग उसको मिल जाया करते थे, स्टूडेंट्स उसको मिल जाया करते थे, और वो उसका मजाक उड़ाया करते थे इस तरह से पूछ पूछ कर डिफरेंट क्वेश्चंस। ऐसा नहीं था कि वेंडा समझती नहीं थी, वेंडा समझती थी उसको, पर उसके आंसर हमेशा सेम होते थे। तो ये जो मजाक उड़ाने का जो एक गेम सा था इन लोगों का, ये इसकी शुरुआत की थी पैगी ने, और मैडी, जिसका नाम शुरू में मैडलिन आया था, वो ये दोनों इंसेपरेबल फ्रेंड्स थे, ये हमेशा साथ में दिखते थे। और जो मजाक उड़ाने का जो शुरुआत होती थी, यही दोनों शुरू करते थे, और आखिर तक ये उसके साथ रहते थे और उससे इस तरह के सवाल करते रहते थे, उसका मजाक उड़ाते रहते थे। यहाँ तक कि वंडा जो थी वो उनसे अलग हो जाती थी, थोड़ा आगे चली जाती थी, उसकी आंखें झुकी हुई होती थी, डल होती थी, उसका उसका मुंह मतलब अपना होंठ उसके बिछे हुए होते थे, क्लोज होते थे, अपने शोल्डरों को अजीब अंदाज में वो हिला रही होती थी, मूव विद अ जर्क, एक झटके से किसी चीज़ को हिलाना, अपने शोल्डर को वो एवरी नाउ एंड देन मतलब हर थोड़ी देर में वो उसको एक झटका देती थी, हिलाती थी, इन द फनी वे शी हैड। और ये भी देखने में फनी लगता था कि वो किस तरह से अपने कंधे को हिला रही है। पर वो जो स्टूडेंट जो उसके साथ में मिल गए थे उसका मजाक उड़ाने के लिए, अब वो उसके साथ नहीं हो हैं, और वो अकेले स्कूल तक जा रही है, फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन। अब उसके साथ कोई नहीं है, जो मजाक उड़ाने वाले थे या जो सवाल करने वाले थे वो सब पीछे रह गए हैं या इधर उधर हो गए हैं। Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies. Bullies means those who habitually, harm people. This harm can be mental, physical, okay. And she cried for hours if she saw an animal mistreated. If anybody had said to her, "Don't you think that don't you think that is a cruel way to treat Wanda?" she would have been very surprised. Cruel? Why did the girl say she had 100 dresses? Anybody could tell that that was a lie. Why did she want to lie? And she wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that? Anyway, they never made her cry. So in this paragraph, actually, Peggy has been more explanation has been given about Peggy, what kind of girl Peggy is. So it is said that Peggy is वो कोई ऐसी नहीं है कि वो बहुत ही बेरहम इंसान हो, उसको किसी के ऊपर रहम ना आता हो। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो स्टूडेंट जो छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको परेशान करते हैं, वो हमेशा उन छोटे बच्चों के फेवर में खड़ी हो जाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स, घंटों रोती थी अगर उसे पता चलता था कि किसी एनिमल को किसी बच्चे ने किसी दूसरे इंसान ने मारा है, या कोई एनिमल जख्मी हालत में उसको मिलता था, चोट लगी हुई होती थी उसको, तो वो उसको ट्रीट करती थी, उसकी देखभाल करती थी। कोई अगर एनिमल्स को परेशान करता था तो वो उनको रोकती थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, और अगर कोई उससे कहता, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, क्या तुमको नहीं लगता कि जिस तरह से तुम वेंडा को ट्रीट कर रही हो वो एक गलत तरीका है ना? तुम उसको परेशान कर रही हो, यू आर यू उसको उसको परेशान करके उसको अफसुर्दा कर रही हो। अगर कोई उससे ये कहता, तो पैगी का क्या रिस्पॉन्स होता कि मतलब वो सरप्राइज हो जाती, वो कहती कि मैं उसके ऊपर जुल्म कर रही हूँ, हाउ दैट कैन बी, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, उसने ये क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं,
उसने झूठ क्यों बोला? सबको पता चल जाएगा आराम से कि वो झूठ बोल रही है। एनीबडी कुड टेल दैट दैट वाज अ लाई। हर कोई बता सकता है कि ये एक झूठ है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। क्यों उसने झूठ बोला? और फिर वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होती तो उसका ऐसा नाम क्यों होता? ऐसा नाम रखने का रीज़न ही है कि वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। तो अगर हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उसके नाम की वजह से ले रहे हैं कि उसका नाम इतना शाही नाम है, इसलिए हम उसमें इतनी इंटरेस्ट ले रहे हैं। शी इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। और कुछ भी कहो, हम उसके ऊपर जुल्म नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा होता तो कभी वो रोती भी तो? कभी वो रोई नहीं, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आया, है ना? कभी उसने ये कहा नहीं कि मुझे परेशान मत करो। तो ऐसा नहीं कि हम उसको परेशान कर रहे हैं, हम उसको परेशान नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। ये तो बस एक मजाक है जो आमतौर से हम करते हैं आपस में। ये तो था मैगी के बारे में कि वो क्या सोचती अगर उससे इस तरह का सवाल होता। अब कहते हैं मैडी क्या सोच रही है इस वक्त। एज फॉर मैडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वेंडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस एंड हाउ मेनी hats and how many this and how many that she had was bothering her. This business was actually bothering her. ये जो बार बार का पूछना था कि तुम्हारे पास कितने ड्रेस हैं, कितने हैट हैं, ये कितने हैं और वो कितने हैं, अब उसको ये चीज़ बॉदर करने लगी थी, उसको परेशान करने लगी थी ये चीज़। वाई? मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ। मैडलिन वो खुद भी एक पुअर लड़की थी। वो खुद बहुत अमीर लड़की हो, उसके पास पैसे हों, उसके पास बहुत सारे ड्रेसेस हों, उसके पास बहुत सारे शूज़ हों, ऐसा नहीं था। वो खुद भी एक पुअर लड़की थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। किसी के क्लोथ्स जो पुराने हो गए हैं, जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, आमतौर से वो उस तरह के कपड़े पहनती थी। हैंड मी डाउन मतलब ये जो यूज़ कर चुके हो ऑलरेडी, अब ये मुझे दे दो, इस तरह के ड्रेसेस उसके पास होते थे। खुदा का शुक्र अदा कर रही है वो, थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन बोगिन्स हाइट और हैव अ फनी नेम। वो उस इलाके में नहीं रहती थी जहाँ पर वेंडा रहती थी, या फिर वो उसका ऐसा नाम नहीं था जिस तरह से वेंडा पेटनॉस्की का था। वो उसके ऊपर कह रही है कि थैंक गॉड, अगर मेरा भी ऐसा नाम होता तो शायद मेरा भी लोग इसी तरह से मजाक उड़ाते। Here is more about Maddie. Sometimes when Peggy was asking Wanda these questions in that mocking, polite voice, Mary felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself. Not that she felt sorry for Wanda exactly. She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dress game. But suppose Peggy and all the other started in on her next. She wasn't as poor as Wanda, perhaps, but she was poor. Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petnowski. कभी कभी when पैगी जब पैगी उसकी फ्रेंड मैडी की फ्रेंड पैगी वेंडा से तरह तरह के क्वेश्चंस पूछ रही होती थी, वो बनावटी नर्म आवाज में ना, मुकिंग में जो वो एक बनावटी अंदाज है, पोलाइट वॉइस में बात करना किसी से। मैडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, मैडी को शर्मिंदगी महसूस होती थी। एंड स्टडीड द मार्बल, और वो खुद से कुछ नहीं कहती थी। एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, वो खुद से कुछ नहीं कहती थी और वो खड़ी रहती थी साथ में पैगी के। पर ये कभी कभी होता था, हमेशा नहीं होता था। मैडी फेल्ट एम्बेरस्ड एंड स्टडीड द मार्बल इन द पाम ऑफ हर हैंड। अपने हाथ में जो उसके कुछ पत्थर होते थे वो उनको देखती रहती थी कि वो कैसे हैं। रोलिंग दम राउंड, उनको घुमाती रहती थी इधर उधर, अपने हाथ में इधर उधर फिसलाती रहती थी, खुद कुछ नहीं कहती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा, ऐसा नहीं था कि वो वेंडा के लिए अफसोस था उसको कि काश ये लोग इसका मजाक ना उड़ाते, है ना, बेचारी परेशान हो रही है। ऐसा नहीं था कि वो उसके बारे में सोच रही थी। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी hadn't invented the dress game. अगर पैगी ने ये ड्रेस गेम इन्वेंट नहीं किया होता तो शायद उसने कभी वेंडा के ऊपर कोई ध्यान दिया ही ना होता। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट। क्या हो कभी पैगी और उस दूसरे जो स्टूडेंट्स जो वेंडा का मजाक उड़ा रहे हैं, क्या हो कि वो वेंडा से हटकर कभी मैडी के ऊपर आ जाएं और वो मैडी का मजाक उड़ाने लगे, है ना? ये कंसर्न था उसके लिए, लेकिन ये
हर मजाक उड़ाने वाले को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि क्या हो कि जो टारगेट अभी है वो टारगेट ना रहे, मैं टारगेट बन जाऊँ, है ना। आज मैं मजाक उड़ाने वालों में हूँ, कल किसी चीज़ पे मेरा मजाक उड़ाए, क्योंकि जो मजाक उड़ाने वाले होते हैं उनको हर रोज़ नया टारगेट चाहिए होता है। और ज़रूरी नहीं है कि सेम टारगेट आपको सेम मज़ा दे, है ना। अगले दिन आपको नया टारगेट चाहिए होगा, है ना, कुछ नए अंदाज में आप मजाक उड़ाएं, तो हो सकता है कि मजाक उड़ाने वाले का ही मजाक बन जाए। तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए कि हम किसी को बुली करें, किसी का मजाक उड़ाएं। देन शी सेज शी वाज़न्ट एज पुअर एज वेंडा। वेंडा की इतनी पुअर तो नहीं थी वो, पर उसको लगता है कि शायद वो उतनी पुअर नहीं है जितनी वेंडा है, बट शी वॉज पुअर, लेकिन डेफिनेटली वो गरीब तो है। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। डेफिनेटली अगर वो गरीब है, और दोनों गरीब हैं, है ना, वेंडा भी और मैडी भी, पर वेंडा में इतना सेंस नहीं है कि वो इस चीज़ को अंदाज़ा लगा सके कि ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। अगर यही क्वेश्चन मैडी से पूछा जाएगा, तो मैडी कहती है कि मेरे पास इतना सेंस तो है कि मैं ये नहीं कहूँगी उन लोगों से कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, कम से कम इस चीज़ के लिए तो वो लोग मेरा मजाक नहीं उड़ा सकते। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। फिर भी वो ये चाहती थी कि भले ही उसके अंदर सेंस है, भले ही वो थोड़ी मतलब गरीब है, फिर भी वो चाहती थी कि उसका कोई मजाक ना उड़ाए। शी विश पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेटनोस्की। और उसका ये डर कब तक रहेगा उसके दिल में, जब तक वेंडा का मजाक उड़ाया जाता रहेगा। वेंडा का मजाक उड़ रहा है तो उसको ये डर लगा हुआ है कि किसी दिन मेरे भी मेरे बारे में भी इस तरह की बातें ये लोग शुरू ना कर दें। तो उसकी ख्वाहिश थी, वो उम्मीद कर रही थी कि काश पैगी जो है वो वेंडा पेटनोस्की किया इस तरह से मजाक उड़ाना, उसको टीज करना छोड़ दे। So this is it, and this was the explanation till the second oral comprehension check. Thank you for watching the video. See you soon.